Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about hereditary diseases in human like phenylketonuria, alkaptonuria, Marfan syndrome and other diseases. Hereditary disease in man are due to inborn error of metabolism and first studied in the human beings by Sir Archibald Garrett. So that's why Sir Archibald Garrett is called father of biochemical genetics or also known as father of physiological genetics. There are many diseases in the human due to gene mutations which may be dominant or recessive. The diseases such as alkaptonuria, phenylketonuria, sickle cell anemia etc. are inherited in the human population on the basis of the pattern according to मेंडेलियन जीन्स. तो जैसे सिंपल मेंडेलियन जीन के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं, तो उसके बेसिस पे ये डिजीज़ का इनहेरिटेंस होता है. द म्यूटेटेड पर्सन मे बिकम इनकैपेबल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम. मतलब जिस पर्सन के अंदर जीन म्यूटेशन होगी तो वो पर्सन इनकैपेबल हो जाएगा टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंजाइम, सो रिजल्ट इन द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. Study of a hereditary disease of human beings reveal that some hereditary diseases are due to single gene mutation. And in human beings, genes behave in the same dominant and recessive pattern. However, a gene also controls metabolism and thus a particular phenotype. मतलब हर जीन किसी न किसी सबस्टांस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल करता है. Okay, so first of all we will discuss about the first disease, that is alkaptonuria. It was first studied by Sir Archibald Garrett and Bateson in 1902. The person suffering from alkaptonuria cannot metabolize homogentic acid, so they excrete large amount of this acid in urine, and the urine containing homogentic acid turns black upon exposure to air. Homogentic acid is also accumulated in the cartilages, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, causing darkening of nose, क्योंकि नोज की टिप के ऊपर कार्टिलेज होती है, and ear and mild arthritis. Arthritis मतलब inflammation of joints. In a normal person, homogentic acid that is called alkapton is oxidized to methyl acetoacetic acid by a liver enzyme, that is homogentic acid oxidase. But in persons suffering from alkaptonuria, due to mutant gene, enzyme homogentic acid oxidase is not synthesized, thus blocking the metabolic pathway. So it leads to accumulation of homogentic acid and cause alkaptonuria, and it is due to recessive म्यूटेंट जीन. ओके, सो अब हम बात करेंगे फिनाइल कीटोनयूरिया की. इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनयूरिया, अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनाइन इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इनटू टायरोसाइन. मतलब जो नॉर्मल पर्सन होगा उसमें फिनाइल एलेनाइन को जो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, तो वो एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को. बट जिस पर्सन में जीन म्यूटेंट हो जाएगा, PAH जीन बोलते हैं उसको, तो वो म्यूटेंट हो जाएगा तो उसमें फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन टायरोसाइन में नहीं होगा. देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्लड, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो ये अकमुलेट हो जाएगा. एंड टिश्यू फ्लूइड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनयूरिया. इंक्रीज्ड फिनाइल एलेनिन इन द ब्लड इंटरफेयर विद ब्रेन डेवलपमेंट एंड लीड्स टू मेंटल retardation. Phenylalanine is accumulated in the CSF, that is cerebrospinal fluid also. Accumulated phenylalanine interfere in the brain development causing mental retardation. Okay, तो ऐसे पर्सन में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा. The muscles and cartilage of the legs may be defective and patient cannot walk properly. Phenylalanine is excreted in the urine and result due to presence of recessive gene
इन द होमोजाइगस कंडीशन, मतलब म्यूटेंट जीन की 2 कॉपी जिसमें होगी तो उसको ये डिजीज़ होगी। इन एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल अलील द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज इज नॉट सिंथेसाइज्ड। द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इज कॉल्ड लैक ऑफ पिगमेंटेशन। ओके, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज मेलानिन। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है, ठीक है, विच प्रोवाइड ब्लैक कलरेशन टू द स्किन एंड द हेयर। द एंजाइम टायरोसाइनेज कन्वर्ट द अमाइनो एसिड टायरोसाइन टू मेलानिन through an intermediate product that is called DOPA, which is a neurotransmitter and known as dihydroxyphenylalanine. Albinism is due to deficiency of the enzyme tyrosinase and it is due to autosomal recessive mutation. Autosome मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। डोमिनेंट जीन कैपिटल A code for the synthesis of tyrosinase and recessive gene small a cannot synthesize tyrosinase. So absence of the enzyme tyrosinase result in albinism. Next disease is sickle cell anemia, and sickle cell anemia is due to single gene mutation. इसमें क्या होता है कि जो RBC हैं वो सिक्कल शेप हो जाते हैं, तभी इसको सिक्कल सेल अनीमिया बोलते हैं। नॉर्मल जीन HbN, N स्टैंड फॉर नॉर्मल, produces normal hemoglobin, whereas mutated gene HbS, S stand for sickle cell anemia, produces abnormal hemoglobin. अब इसमें होगा क्या abnormal hemoglobin में, जो 6th अमाइनो एसिड होता है नॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। बट इन सिक्कल सेल अनीमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह पे आ जाएगा वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। सो द होमोजाइगस पर्सन HbS मतलब जिसके पास दोनों कॉपीज़ के ऊपर S जो ट्रेट होगा, ऐसा मतलब सिक्कल सेल अनीमिया का जो जीन होगा, दैट विल प्रोड्यूस फॉल्टी बीटा चेन एंड लीड्स टू सिक्कल सेल अनीमिया। हेट्रोजाइगस पीपल विद HbN HbS जिसमें ये जीनोटाइप होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सिक्कल सेल अनीमिया डिजीज़ नहीं होगी, बट द पर्सन विद सच जीनोटाइप विल बी नोन एज कैरियर ऑफ सिक्कल सेल अनीमिया ट्रेट। नेक्स्ट डिजीज इज थैलासेमिया। इन थैलासेमिया पर्सन कैन नॉट सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन, मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। थैलासेमिया इज ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेंट जीन। व्हेन दिस जीन इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट द डिजीज इज वेरी सिवियर एंड कॉल्ड थैलासेमिया मेजर। थैलासेमिया मेजर causes डेथ इन द चाइल्डहुड। हेट्रोजाइगस पर्सन शो अ माइल्डर डिजीज, मतलब जिसमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा तो उसमें माइल्ड सिम्टम होंगे इस डिजीज़ के, एंड इट इज़ कॉल्ड थैलासेमिया माइनर और कूलेज एनीमिया। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलासेमिया मेजर आर अनएबल टू प्रोड्यूस बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो यहाँ पे बीटा चेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। देयर हीमोग्लोबिन इज फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल मतलब जो बच्चे की होती है एम्ब्रियोनिक फेज में, विच कंटेन डेल्टा चेन लाइक दैट ऑफ फीटस। फीटल हीमोग्लोबिन इज अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। नेक्स्ट डिजीज इज गाउचर्स डिजीज। गाउचर डिजीज में क्या होता है, पर्सन कैन नॉट मेटाबोलाइज फैट नॉर्मली। ड्यू टू एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म फैट्स गॉट accumulated in the spleen, liver, bone marrow and the brain. Swelling of the spleen, liver, bone marrow and brain occurs. Usually the person suffering from Gaucher's disease die by the age of 15 years. Gaucher's disease is caused by the absence of enzyme glucocerebrosidase required for the proper processing of lipid. मतलब फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम इसमें मिसिंग होता है। गाउचर डिजीज इज ड्यू टू रिसेसिव जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट डिजीज इज टैशक डिजीज। टैशक्स डिजीज इज ड्यू टू एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। द अनप्रोसेस्ड फैट accumulated in the nerve sheath
and slowly block the passage of nerve impulse. तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स ब्लॉकेज हो जाएगी टैशिक डिजीज में, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म. Children with this disease lack the dominant gene for production of hexoaminidase, an enzyme needed for the metabolism of sphingolipids, that is fatty substances. As Tay-Sachs disease is due to gradual deposition of fats in the nerve sheath, an affected child homozygous for the recessive gene is normal at birth, but after 5 to 6 months of the birth देर इज़ डिक्लाइन इन मेंटल एबिलिटी. मतलब वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है. ग्रेजुअली विजन स्टार्ट्स फेलिंग, मतलब जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है. मस्क्यूलर वीकनेस हो जाती है एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ ऑल द मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल अकर्स. इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम टैशक डिजीज डेथ अकर विद इन 3 to 4 years of the birth. Next disease is galactosemia. Person suffering from galactosemia is unable to convert galactose to glucose. So galactosemia is due to deficiency of the enzyme galactose phosphate uridyl transferase, that is GPT. Milk is toxic to the infant suffering from galactosemia. मतलब मिल्क से एलर्जी होगी इनको. Galactosemia in the man is due to an autosomal recessive gene. The affected child usually dies एट 3 years ऑफ द एज. 3 साल के अंतराल में इनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफिक डिवार्फिज्म. इन कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफिक डिवार्फिज्म प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ एरिया ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स रिजल्ट इन शॉर्टनड एंड बाउड आर्म्स एंड लेग्स. मतलब जो ग्रोइंग पॉइंट होता है बोन्स का, तो उसका प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है वो बड़ा पार्ट. तो जो हाइट है वो बहुत छोटी रह जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफिक डिवार्फिज्म. इट इज़ ड्यू टू डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन. नॉर्मल पर्सन इज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील स्मॉल c. द प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट जीन, दैट इज कैपिटल C, रिजल्ट इन कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफिक डिवार्फिज्म. मतलब जब कैपिटल C होगा तो ये डिजीज होएगी. ओके, सो नेक्स्ट डिजीज इज cystic fibrosis. In cystic fibrosis, due to autosomal recessive gene, a protein cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is not synthesized. CFTR regulate the chloride ion transport across the plasma membrane. मतलब जो ये प्रोटीन है CFTR, इसका फंक्शन है to regulate transport of chlorine across the plasma membrane. द स्वेट इन द बॉडी बिकम रिच इन सोडियम क्लोराइड. जो पसीना आता है उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होएगा. द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द बॉडी बिकम एबनॉर्मली विस्केड. बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. म्यूकस ब्लॉक द पासेज इन द लंग्स, लिवर एंड पैंक्रिया. वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन अफेक्टेड बाय सिस्टिक फाइब्रोसिस इज पैंक्रिया विच डेवलप फाइब्रस ग्रोथ. द जीन फॉर दिस डिजीज इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7. Next disease is Marfan syndrome. In Marfan syndrome, a connective tissue protein called fibrillin is not produced. Deficiency of this fibrillin protein result in defective collagen protein. Marfan syndrome is due to dominant mutant gene. The long, thin arms, legs and digits of the fingers characteristic of the Marfan syndrome are called spider fingers और अरेक्नोडेक्टाइली. मतलब जो फिंगर होएगी वो स्पाइडर जैसी फिंगर होती हैं तो उसको बोलते हैं अरेक्नोडेक्टाइली. आइस, एओर्टा एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू आर ऑल्सो अफेक्टेड इन द मार्फन सिंड्रोम. नेक्स्ट डिजीज अल्जाइमर्स डिजीज. अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ मेमोरी एंड ability of judgment as well as general physical impairment. Alzheimer disease is due to accumulation of amyloid proteins plaques in the brain resulting in the degeneration of neurons. The protein involved amyloid beta peptide is produced
and processed in the number of ways in the normal brain from a large amyloid precursor protein. This disease is common among the Down syndrome, जिसमें 21st जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो पर्सन होते हैं उनमें अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा या प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया और हंटिंगटन्स डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट द ब्रेन एंड इट इज़ अ डिजीज़ विच अपीयर यूजली इन द 5th डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब जब 50 साल का हो जाएगा पर्सन। हंटिंगटन्स कोरिया इज ड्यू टू म्यूटेंट डोमिनेंट जीन। द म्यूटेटेड जीन causes abnormality by producing a substance which interfere with the normal metabolism in the brain. तो ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म होगा हंटिंगटन्स कोरिया में। पर्सन सफरिंग फ्रॉम हंटिंगटन्स कोरिया हैव हाई लेवल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन क्विनोलिनिक एसिड। न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो नर्व के लिए टॉक्सिक होगा सब्सटेंस, उसका नेम है क्विनोलिनिक एसिड, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डैमेज टू द ब्रेन। मोस्टली पेशेंट डाई 10 to 15 ईयर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ शुरू होने के 10 से 15 साल बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। जीन ऑफ दिस डिजीज़ इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4. So this was all about hereditary diseases in human. Thanks for watching.